Okay. So this is our next class. আছো সবাই যারা প্রেজেন্ট আছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, wait. So this is our next class, which is your Advanced Highway Transportation Engineering. Okay, and we were learning the traffic engineering module. हम लोग start किए थे. Okay, and in that module, we can say that this is the last portion of your traffic engineering module. No, not last. There will be one more class. Okay, so signal design. We were learning signal design. Okay, what was the first method that we have used for designing the signal? इन द लास्ट क्लास कौन सा मेथड यूज करके हम लोगों ने सिग्नल डिजाइन किया था? नेम क्या था? विच मेथड? एनीवन? अच्छा बोलो तो. Trial and error method. Trial and error, not trial and error, that is your trial cycle method. नाम याद रखो, trial cycle method. Okay, cycle length, we have assumed the cycle length value, then we did some procedure. Okay, if it's not satisfied, then we are again taking another value. That means we are going for second trial. So that's why it is called trial cycle method. Now the second most important method is your Webster's method. Okay, so and the number of the phase that we will design is your two phase. Simple phase is what? Two phase. There are multi phase also, more than two phase also, but that will be a little bit tricky. Okay, but the simple phase diagram or the phase design is what for your semester purpose is the two phase signal design. Okay, so we will solve one problem again, that will be two phase with the help of your Webster's method. Now before going to the method, there are some important terminology as I already explained in the previous class. Okay, what are those? Cycle length. Okay, now can you कोई भी बोलो तो cycle length क्या था और what we have to design? First tell me what we have to design in cycle signal design. कौन सा पैरामीटर हमको डिजाइन करना पड़ रहा है सिग्नल डिजाइन में? मतलब डिजाइन मतलब क्या है? वी हैव टू डिजाइन वन पैरामीटर, राइट? कोई भी एक पैरामीटर को कैलकुलेट करना पड़ता है. तो यहाँ पे टाइमिंग. यस, टाइमिंग. दैट मीन्स व्हाट? इंटरवल्स, राइट? वेदर इट इज ग्रीन, व्हाट इज योर रेड सिग्नल, कितना टाइम के लिए है, ड्यूरेशन ऑफ रेड सिग्नल, ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन सिग्नल, ठीक है? एंड द टोटल cycle length. Now a cycle means what? Repetition of the something phenomenon, the phenomenon which is repetitive in nature. यहाँ पे repetitive क्या हो रहा है? यहाँ पे green जब से start हुआ, फिर red, amber ये सब आके दूसरा green जब start होता है, तो टाइम कितना लग रहा है from one green to another green, उसको बोलते हैं cycle length. Okay, that is one complete cycle complete करता है. मतलब कि ग्रीन होके रेड हो रहा है, ये हो रहा है, फिर से ग्रीन आ जाएगा. मतलब क्या हो रहा है? एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, फिर से सेम उतना ही रेड उतना ही एम्बर आएगा, फिर ग्रीन आएगा, राइट? सो दैट इज योर साइकिल लेंथ. ओके, वही हमको चाहिए. नाउ इंटरवल वी सेड रेड इंटरवल, ग्रीन इंटरवल ये है, ये सब हमको पता है, ठीक है? ग्रीन है तुम्हारा जाने के लिए, एक्सेस के लिए, ठीक है? रेड है स्टॉप के लिए, और तुम्हारा क्या बोलते हैं? चेंज इंटरवल जिसको बोलते हैं, विच इज एम्बर और येलो. चेंज इंटरवल या इसको कॉशनरी इन्वर्टर, मतलब जो कॉशियस तुमको कॉशन करता है, वार्न करता है कि ठीक है सिग्नल चेंज होने वाला है, तो उसको चेंज इंटरवल भी बोल सकते हैं. ओके, सो विच इज दिस वन. एंड योर क्लियरेंस इंटरवल इज व्हाट? देखो कई कई सिग्नल में क्या हो जाता है कि इन ऑल द अप्रोच मीन्स व्हाट? द आर्म्स ऑफ एन इंटरसेक्शन. चार ठो अप्रोच है, मतलब फोर लेग इंटरसेक्शन में चार ठो अप्रोच है, राइट? फोर अप्रोचेस आर देयर. मतलब द रोडवे through which your vehicles are entering the intersection, that is called the approach. Okay, अब देखना कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये चार ठो अगर फोर लेग इंटरसेक्शन है तो क्या है? चार ठो अप्रोच में ही पूरा रेड सिग्नल है, मतलब चारों के चारों में ही रेड सिग्नल है. ओके, दैट इज कॉल्ड योर ऑल रेड इंटरवल. और उसको हम लोग
किस चीज के लिए देते हैं? फॉर क्लियरेंस पर्पस। मतलब कि क्या है, अगर तुम्हारा ऐसा अप्रोच है, ठीक है, तो ये चारों के चारों अप्रोच में ही क्या हो जाएगा? रेड सिग्नल। सपोज यहाँ पे भी रेड सिग्नल है, यहाँ पे भी रेड सिग्नल, इस वाले में भी रेड सिग्नल, इस वाले में भी रेड सिग्नल, ठीक है। तो सब एवरीवन आर इन स्टॉप कंडीशन, ये भी स्टॉप कंडीशन, ये भी स्टॉप कंडीशन, ये भी स्टॉप कंडीशन, ठीक है। कोई भी व्हीकल एंटर नहीं कर रहा है। ओके, नाउ व्हाई दिस काइंड ऑफ इंटरवल प्रोवाइड करते हैं, क्यों? देखो नाम से, हाँ मुंद्री जावे बोले। हाँ, क्लियरेंस के लिए। क्लियरेंस मतलब कि सपोज बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, मतलब एकदम पीक आवर है फर्स्ट, तो ठीक है, पहला तो पीक आवर है, और क्या है कि बहुत सारा जैम कंडीशन वैसा हो जा रहा है कि ट्रैफिक यहाँ से भी बहुत सारा है, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत सारा इस इंटरसेक्शन को यूज कर रहे थे पिछले वाले सिग्नल या पिछले वाले साइकिल में, दे आर यूजिंग दिस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो उन लोग को क्लियर करने के लिए कि ये खाली करना है, पूरा का पूरा ये एरिया खाली कर दो, ठीक है, उतने टाइम में, दैट इज योर क्लियरेंस इंटरवल। इसको बोलते हैं ऑल रेड सिग्नल, मतलब कि सब जगह रेड कर दिया, जिससे कि जितना भी यहाँ पे घुस गया था इंटरसेक्शन पिछले वाले साइकिल से, वो लोग क्लियर कर सके। जब खाली हो जाएगा अब चेंज हो जाएगा सिग्नल्स, फिर से ग्रीन एम्बर जो भी है चेंज हो जाएगा। ओके, सो इसको बोलते हैं ऑल रेड सिग्नल, एंड दिस इज वन काइंड ऑफ लॉस। लॉस क्यों बोलते हैं? तुम जितना इंटरसेक्शन को यूज कर पाओगे उतना अच्छा है, राइट, मतलब उतना इफेक्टिव है वो इंटरसेक्शन, राइट, मतलब खाली नहीं रहना चाहिए इंटरसेक्शन कभी भी, आइदर इस तरफ से हो या इस तरफ से हो, गाड़ी मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव यूज ऑफ द सिग्नल। अगर हम लोग इसको बंद कर दिए, चारों का चारों अप्रोच ही फ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? देयर इज द लॉस। ओके, सो ऑल रेड इज आल्सो नोन एज द one kind of loss. Okay, we are not able to use the intersection effectively, मतलब ग्रीन सिग्नल हम इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे। ओके, सो उसको लॉस में भी ऐड करना है, इसको ये याद रखना है। when we will solve we have to remember this. okay, now दूसरा क्या है, देखो चेंज हो गया, चेंज मतलब एम्बर का है, ठीक है। फेज, एज आई सेड, फेज क्या है? फेज तुम्हारा है कि मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक, मतलब जिस सिग्नल के थ्रू तुम्हारा मूवमेंट होता है, ठीक है, वेदर इट इज लेफ्ट टर्न राइट टर्न मूवमेंट एक साथ हो रहा है, या सिर्फ स्ट्रेट मूवमेंट हो रहा है, या सिर्फ राइट टर्न मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जिस मूवमेंट जहां जहां पे देते हैं, जिस जिसका मूवमेंट देते हैं, उन लोग का अलग अलग ही अपना फेज डायग्राम होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोले थे सिंपल एग्जांपल क्या था 4 फेज सिग्नल में, जैसे सिंपल एग्जांपल क्या है 4 फेज सिग्नल का, कि तुम्हारा सपोज ये सिग्नल है, ठीक है। 2 फेज का अगर बोलेगा, सिंपल 2 फेज सिग्नल का एग्जांपल दो, तो एक है साउथ से और नॉर्थ से, मतलब ये मूवमेंट वी आर अलाउइंग, और बाकी लोगों को हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज वन फेज। तो इस वाले फेज का ग्रीन एम्बर रेड अलग रहेगा। ओके, और दूसरा क्या है? दूसरा का सेम इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? सेम इंटरसेक्शन में तुम्हारा ईस्ट वेस्ट और वेस्ट साउथ से मूवमेंट दे रहे हैं, और बाकी का आर स्टॉप कंडीशन, नॉर्थ साउथ को हम लोग स्टॉप करके रखे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, तो इसके लिए ये वाले फेज के लिए ग्रीन रेड एम्बर अलग से होगा, ठीक है। ये अगर दोनों का ट्रैफिक फ्लो सेम है तो हम लोग सेम ग्रीन देंगे, ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही हो जाएगा, ग्रीन एम्बर रेड सेम वैल्यू रहेगा, इसका जितना ग्रीन है इसका भी उतना ग्रीन है। अगर नॉर्थ साउथ का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो हमको इसको ज्यादा ग्रीन देना चाहिए, जिससे कि ये लोग क्लियर कर दे, राइट। और अगर ईस्ट वेस्ट का ज्यादा है तो इसको ग्रीन सिग्नल ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, कंपेयर टू द नॉर्थ साउथ, इफ दिस ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक इज मोर कंपेयर टू द नॉर्थ साउथ। ओके, तो ये ग्रीन टाइम मे बी इक्वल और मे बी वेरिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो, इस टाइप का फ्लो आ रहा है, ठीक है। और दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 2 फेज सिग्नल, मतलब इसका ग्रीन रेड सिग्नल, रेड एम्बर मिलाकर जो भी साइकिल लेंथ होगा, दोनों सेम इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो इसका भी ग्रीन रेड एम्बर मिलाकर सेम साइकिल लेंथ होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि ग्रीन का टाइम अलग हो सकता है, रेड का टाइम अलग हो सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, बट दोनों का साइकिल लेंथ इज
सेम, ठीक है। मतलब कि अगर तुम्हारा 120 सेकेंड का ग्रीन सिग्नल है, टोटल साइकिल लेंथ है, तो अगर ये इक्वल ग्रीन ग्रीन देना है तो कितना कितना देना पड़ेगा, इसको 60 सेकेंड, इसको 60 सेकेंड ग्रीन देंगे हम, ठीक है। मतलब कि 120 सेकेंड में 60 सेकेंड इसको अगर हम ग्रीन दिया है तो बाकी का 60 सेकेंड ये रुका रहेगा, ठीक है। और जब ये वाला रुकेंगे, ये वाला रुक जाएगा, तो इसको 60 सेकेंड चलने देना है। अगर ये दोनों का ट्रैफिक सेम है तो हम लोग सेम अमाउंट ऑफ ग्रीन टाइम दे देंगे। लेकिन साइकिल लेंथ टोटल कितना है, 120 सेकेंड, मतलब कि 120 सेकेंड में 50 टाइम्स ये वाला मूव होगा, 50 टाइम्स ये वाला मूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट 50 टाइम्स ये वाला मूव होगा। सो दिस इज द मेन फंडा। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। डाउट है? हाँ, अगर ट्रैफिक वैल्यू अलग अलग है देन इसका ग्रीन अलग हो सकता है, ठीक है। सपोज हम लोग रेशियो चेंज कर सकते हैं, 60:40। यहाँ पे 6 जो भी, अगर 120, अगर 100 टोटल साइकिल लेंथ इज योर 100 सेकेंड, तो ये 60 सेकेंड इसको देंगे, 40 सेकेंड इसको देंगे, क्योंकि ये इसका रेशियो ही है, ट्रैफिक फ्लो का रेशियो ही है 60:40, ठीक है। तो ये है फेज डायग्राम। नाउ कम्स इंटरग्रीन, ये वाला पिछले वाले में नहीं था, ओके। यहाँ पे इंटरग्रीन आएगा क्योंकि व्हेन वी विल सॉल्व वी हैव टू नो दिस वैल्यू, इंटरग्रीन क्या है। तो इससे पहले लेट अस सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरग्रीन, ओके। तो इंटरग्रीन को समझने के लिए ये वाला देखो, ठीक है। हम उतना दूर तक नहीं जाएंगे, ये एक फेज का साइकिल देखो, यहाँ से ग्रीन स्टार्ट, ठीक है, ये रेड स्टार्ट, ठीक है, येलो स्टार्ट, रेड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक फेज है, ये दूसरा वाला फेज है, ठीक है। ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन इंटरवल का मतलब है कि, सॉरी, इंटरग्रीन का मतलब है कि एक ग्रीन से लेकर दूसरा ग्रीन के बीच का टाइम, मतलब कि सपोज ये वाला स्ट्रीट ए से जो ग्रीन स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब स्टार्ट होके खत्म हो रहा है। सपोज ये 10 बजे स्टार्ट हुआ था ग्रीन, 10 बज के तुम्हारा मतलब 1 मिनट, 10 बज के 1 मिनट में ग्रीन खत्म हो गया, ओके। तो उसके तुरंत बाद ही इसका ग्रीन स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है, अगर ये इफेक्टिवली यूज करेंगे। लेकिन कई होता है कि बीच बीच में तुम्हारा क्या देते हैं हम लोग, जैसे ये देखो एम्बर आ गया, ठीक है। एम्बर आने से क्या है, ये वाला का रेड रखना चाहिए, इसका ग्रीन खत्म हुआ, एम्बर स्टार्ट हुआ, मतलब इसका रेड ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका रेड स्टार्ट हो गया, तो इसका क्या स्टार्ट होना चाहिए था, ग्रीन स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम बोले थे क्या, ऑल रेड दे देता है, मतलब सबके सब में रेड दे देता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये ग्रीन खत्म हो गया, एम्बर स्टार्ट होके वो भी खत्म हो गया, अब रेड सिग्नल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेड सिग्नल ही है, ओके। फिर भी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, मतलब एम्बर यहाँ पे जब खत्म हो जाएगा, ग्रीन खत्म हो गया, एम्बर खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला को तो रास्ता देना चाहिए था, लेकिन ये वाला को भी अभी तक रेड ही दे रहे हैं। जब इसका ग्रीन एम्बर था तब भी रेड था, अब इसका रेड स्टार्ट हुआ तब भी इसका रेड स्टार्ट है, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये ग्रीन खत्म हो गया, एम्बर खत्म हो गया, ठीक है। तो तब तक तो इसका रेड था, कोई बात नहीं, ओके। अब इसका तो रेड स्टार्ट हो गया, नाउ वी कैन गिव ग्रीन टू दिस सिग्नल, ये 20 स्ट्रीट को ग्रीन सिग्नल दे सकते थे, लेकिन ऑल रेड की वजह से यहाँ पे ये वाला भी रेड आ गया, मतलब इसका भी रेड है, इसका भी कुछ सेकेंड रेड रहेगा, आफ्टर सम सेकेंड, मतलब 3 to 4 सेकेंड ये वाला का ग्रीन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये वाला है देखो, ठीक है। सो इंटर ग्रीन क्या है, इसका ग्रीन कब खत्म हुआ, 10 बज के 1 मिनट में खत्म हुआ, ठीक है। लेकिन सपोज 2 सेकेंड एम्बर रखा, ठीक है, 10 बज के 1 बज के 2 सेकेंड के बाद भी इसका रेडी है, ठीक है। अब 10 बज के 2 बज के तुम्हारा 10 बज के 1 बज के 1 सेकेंड के बाद, सॉरी 2 सेकेंड के बाद फिर से 2 सेकेंड रेड हुआ, तब जाके ये वाला ग्रीन होगा, मतलब आफ्टर कितना सेकेंड के बाद, एम्बर 2 सेकेंड था तो ये इसका रेड भी 2 सेकेंड जला, ठीक है। मतलब आफ्टर 4 सेकेंड इसका ग्रीन खत्म होने के बाद, इसका ग्रीन खत्म होने के बाद आफ्टर 4 सेकेंड इसका ग्रीन स्टार्ट होता है। सो इंटर ग्रीन क्या है, 4 सेकेंड है, ओके। दिस इज द 4 सेकेंड गैप, मतलब कि इसका ग्रीन जब खत्म हुआ और इसका ग्रीन जब स्टार्ट हुआ, तो उन दोनों के बीच का टाइम गैप कितना है, दैट इज इंटर ग्रीन। क्लियर? कभी कभी हो सकता है कि देखो ऑल रेड अगर नहीं देता तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब इंटर ग्रीन इज नथिंग बट दी एम्बर टाइम, मतलब एम्बर येलो जितना देर रहेगा उतना ही इसका इंटर ग्रीन, मतलब यहाँ पे ग्रीन खत्म हो गया, फिर 2 सेकेंड एम्बर हुआ, फिर जाके ये वाला ग्रीन स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब इसका इंटर ग्रीन क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। लेकिन हम लोग बोले थे कभी कभी ऑल रेड भी आ जाता है,
इसलिए ये देखो ये ऑल रेड है, ये वाला भी अप्रोच रेड है, ये वाला भी अप्रोच रेड है, सो दिस इज ऑल रेड। ओके, तो इसको भी इंटरग्रीन में ऐड करना पड़ता है। सो कैन वी कंक्लूड दैट इंटरग्रीन इज इक्वल्स टू आइदर एम्बर और इट इज इक्वल्स टू एम्बर प्लस ऑल रेड। ठीक है, ये इंटरग्रीन, ये गैप है। 10 बजे खत्म हुआ, 2 सेकेंड तक इसका एम्बर है, फिर से 2 सेकेंड तक अब इसका रेड चालू हो गया, लेकिन इसका अभी भी रेड चल रहा है, 2 सेकेंड तक रेड चलेगा। आफ्टर 2 सेकेंड, एम्बर खत्म होने के आफ्टर 2 सेकेंड इसका ग्रीन स्टार्ट होगा। तो टोटल इंटरग्रीन क्या है, ये कब ग्रीन खत्म हुआ, ये कब ग्रीन स्टार्ट हुआ, दैट इज इसका एम्बर प्लस ऑल रेड। ओके, इसका एम्बर प्लस ऑल रेड, ये दोनों ऑल रेड है। ओके, क्लियर? इंटरग्रीन इज इक्वल्स टू एम्बर प्लस ऑल रेड, ये फॉर्मूला क्लियर है? यस मैम। ओके, सो ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ओके, व्हेन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, व्हाट, इंटरग्रीन इक्वल्स टू एम्बर प्लस ऑल रेड। ओके, नाउ सी लॉस्ट टाइम। अब आते हैं लॉस्ट टाइम में। जब भी हम लोग साइकिल लेन डिजाइन करते हैं ट्रायल साइकिल में, ये सब हम लोग एज्यूम नहीं किए थे, इसीलिए इसको मॉडिफाई करके क्या हो रहा है, अब वेबस्टर मेथड में जा रहे हैं, क्योंकि वेबस्टर मेथड इट इज मच बेटर, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकली कुछ कंसिडरेशन जो भी प्रैक्टिकली हो रहा है वो इंक्लूड हो रहा है। ओके, व्हाट आर दोस कंडीशंस, दैट आर लॉसेस होगा, मतलब कि हम, इट इज नॉट लाइक दैट कि ग्रीन स्टार्ट हो गया तुरंत तुम्हारा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया, मतलब कि जितना ग्रीन टाइम दिया है उतना ग्रीन फुल्ली यूटिलाइज होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तुम लोग कभी कभी देखते हो कि ग्रीन स्टार्ट हो गया लेकिन गाड़ी तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो लॉस। जितना टाइम के बाद, सपोज ग्रीन 10 बजे स्टार्ट हुआ, 10 बज के 5 सेकेंड के बाद गाड़ी एंटर करना स्टार्ट किया, तो जो 5 सेकेंड यूज नहीं हुआ इंटरसेक्शन, दैट इज वन काइंड ऑफ लॉस, उसको बोलते हैं इनिशियल लॉस। ठीक है, इनिशियल लॉस, क्योंकि क्या है, ग्रीन स्टार्ट होने के, जब ग्रीन स्टार्ट होता है तब कुछ लॉस हो रहा है, इसलिए इनिशियली कुछ लॉस हो रहा है, इज योर इनिशियल लॉस। ठीक है, और उसको बोलते हैं स्टार्टअप लॉस टाइम, L1। ओके, और दूसरा है कि एंड लॉस टाइम। एंड लॉस टाइम मतलब क्या है, यही है, सपोज ग्रीन चल रहा है, ग्रीन सिग्नल चल रहा है, लेकिन गाड़ी खत्म हो गया, गाड़ी एंटर कर दिया, गाड़ी फ्लो हो रहा है, अब गाड़ी और यहाँ पे नहीं जा रहा है, मतलब गाड़ी खत्म हो गया लेकिन ग्रीन सिग्नल चल ही रहा है। ठीक है, सो वो भी है क्या, दैट इज ऑल्सो योर वन काइंड ऑफ लॉस, मतलब ग्रीन दे रहे हैं लेकिन गाड़ी मूवमेंट इंटरसेक्शन यूज नहीं कर रहा है, इंटरसेक्शन को यूज नहीं कर रहा है, राइट? सो दैट इज योर एंड लॉस टाइम, मतलब ये जब ग्रीन खत्म होने वाला होता है, टुवर्ड्स एंड, इसीलिए इसको बोलते हैं एंड लॉस टाइम। तो L1 प्लस L2, एंड एंड लॉस टाइम में ही तुम्हारा ये इंटर ग्रीन, ऑल रेड, ये सब आता है। ओके, दैट इज योर एंड लॉस टाइम में ये कंसिडर होता है। वरस स्टार्टअप लॉस टाइम को हम लोग कभी कभी हेडवे दे देगा, उससे हम लोग को निकालना पड़ेगा। ओके, स्टार्टअप लॉस टाइम क्या होता है, तो देखो अगर ये टोटल टाइम इज योर ग्रीन टाइम, ठीक है, कुछ इनिशियली लॉस हो रहा है, मतलब कुछ हम लोग इंटरसेक्शन यूज नहीं कर रहे, ग्रीन स्टार्ट हो गया, ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म होगा, ठीक है, लेकिन ये कुछ टाइम हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, मतलब गाड़ी नहीं यूज कर रहा है, सो दैट इज इनिशियल लॉस टाइम, ये बात स्टार्टअप लॉस टाइम। और यहाँ पे है कि एट द एंड ऑल्सो व्हीकल्स खत्म हो गया लेकिन ग्रीन सिग्नल रह जा रहा है, मतलब दैट इज ऑल्सो नॉट यूजिंग, राइट? सो दैट इज योर एंड लॉस टाइम। बीच में जितना गाड़ी यूज कर पा रहा है इंटरसेक्शन को, जितना टाइम इंटरसेक्शन में गाड़ी जा रहा है, दैट इज द इफेक्टिव ग्रीन। तो हमको चाहिए ये वाला ही, इफेक्टिव ग्रीन से काम करना चाहिए, ये लॉस हमको नहीं चाहिए। सो व्हेन वी कैलकुलेट और डिजाइन, ओके, सो हम लोग को ये इफेक्टिव ग्रीन चाहिए। ओके, सो इफेक्टिव ग्रीन कैसे आएगा, इफेक्टिव ग्रीन, अच्छा इससे पहले ये वाला देख लिया, अब आते हैं स्टार्टअप लॉस टाइम क्या है। ओके, स्टार्टअप लॉस टाइम है तुम्हारा, देखो सपोज ये इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो गया, क्यों होता है, अच्छा किसी को पता है स्टार्टअप लॉस टाइम क्यों होता है? ये जो इनिशियली हम लोग इंटरसेक्शन को यूज नहीं कर पाते, ग्रीन स्टार्ट हो गया लेकिन गाड़ी नहीं जा रहा है, क्यों, कहाँ पे हो सकता है ऐसा केसेस? सपोज सी ये रेड फेस था, रेड सिग्नल था, इंटरवल था, बहुत देर तक रेड था, ठीक है, मतलब एकदम 100 सेकेंड तक रेड था, ठीक है, तो जब ये गाड़ी एंटर किया, ये फर्स्ट वाला एंटर किया तभी रेड स्टार्ट हुआ,
अब उसको 100 सेकेंड तक बैठे रहना है तो क्या करेगा, ये हैव द टेंडेंसी टू स्टॉप हिज व्हीकल, उसको बंद करने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। तो पीछे वाला भी वही करेगा इसको देखकर, ठीक है, अच्छा इसका तो टाइम है, क्यों अपना फ्यूल खर्चा करे। तो करते करते ये लोग क्या हो जाता है, इनिशियली जो एक दो व्हीकल स्टॉप कर देता है, ठीक है, और लास्ट में जो आ रहा है वो लोग तो लिए तो कम टाइम रहेगा ना, तुम लोग का मतलब स्टॉप नहीं करेगा, लेकिन दे विल इन द स्टैंडिंग पोजीशन वेटिंग फॉर द दिस इनिशियल व्हीकल्स जो है सामने की तरफ, उनके एक्शन का वो लोग वेट करेंगे कि ये लोग जाएगा तब हम लोग जाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल तुमको नहीं पता है, वहां पे टाइमिंग भी दिया है, रेड अभी भी जस्ट स्टार्ट हुआ, तुम लोग स्टॉप करके बैठ गए, तुमको नहीं पता कितना देर रेड होगा, फिर कितनी देर के बाद ग्रीन होगा, ठीक है। तो क्या कर दिया वहां पे तुम्हारा, अब रेड से अचानक ग्रीन स्टार्ट हो गया, ठीक है, यू आर नॉट रेडी। अब तुम गाड़ी स्टार्ट करोगे, उसमें तो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगेगा, कुछ सेकंड तो लगेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड तो लगेगा, फिर जाके तुम इसको एंटर करोगे, इंटरसेक्शन में घुसोगे, ठीक है। अब तुम्हारे पीछे जो था, तुम घुसोगे तभी तो ये भी घुस जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका, ये जितना लेट करेगा वो भी उतना ही लेट करेगा घुसने में। अब सपोज 10 बजे स्टार्ट हुआ, ये 10 बज के 2 सेकंड के बाद जाएगा, तो ऑब्वियसली ये 10 बज के 4 सेकंड के बाद इसको एंटर करेगा, तो पीछे वाला भी वैसे ही लॉस होता होता जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा मूवमेंट में होता है तो पीछे वाला आके उसके साथ ही ज्वाइन कर लेता, मतलब उसमें वो लोग स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है। सो देखो ये वाला अगर हम लोग समझाएंगे, नाउ व्हाट इज द टाइम गैप, मतलब 10 बजे स्टार्ट हुआ, ये 10 बज के 3 सेकंड में इंटरसेक्शन को यूज किया, इंटरसेक्शन में घुसा, सो 3 सेकंड इज द हेडवे ऑफ दिस व्हीकल, ओके, 3 सेकंड इज द हेडवे ऑफ दिस व्हीकल। अब ये 10 बज के 3 सेकंड में एंटर किया, दूसरा वाला व्हीकल 10 बज के 5 सेकंड में एंटर करेगा, सो 2 सेकंड इज द हेडवे ऑफ सेकंड व्हीकल। तो वैसे हम लोग अगर डायग्राम करेंगे, फर्स्ट व्हीकल का सपोज बोले थे 3 सेकंड, सेकंड व्हीकल का हम बोले थे 2 सेकंड, करते करते ये स्लोली डिक्रीज होता होता जाएगा, क्योंकि दे आर इन द कंटिन्यूअस फ्लो। अब जाके एक कांस्टेंट रेट में जाना स्टार्ट करेगा, मतलब 2-2 सेकंड के बीच बीच में ये लोग एंटर कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये जाके कांस्टेंट हो जा रहा है, ओके। सो लॉस इज व्हाट, एंड दिस हेडवे इज द सैचुरेशन हेडवे, मतलब कि यही मैक्सिमम हेडवे है, मतलब मिनिमम हेडवे यही है। अगर हम लोग क्या बोलते थे, हेडवे बढ़ेगा तो फ्लो क्या होगा, घटेगा ना बढ़ेगा। इफ योर हेडवे रिड्यूस, टाइम गैप अगर इन दोनों के बीच में रिड्यूस होता जाएगा तो तुम्हारा फ्लो बढ़ेगा ना कि घटेगा। ट्रैफिक फ्लो थ्योरी का जो था रिलेशन क्या था, क्यू और एच के बीच में, क्यू इक्वल्स टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हेडवे और मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब हेडवे कम होता होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कम कम टाइम में ये लोग एंटर कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, राइट, बहुत ज्यादा गाड़ी एंटर कर रहा है कम कम टाइम में, राइट, ठीक है। तो फ्लो बढ़ेगा, तो फ्लो बढ़ेगा मतलब एक सैचुरेशन फ्लो आ जा रहा है, ठीक है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हेडवे को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन हेडवे, ओके। सो ये है तुम्हारा सैचुरेशन हेडवे। तो सैचुरेशन हेडवे अगर पता है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट सैचुरेशन फ्लो रेट, ओके, तो विच इज 3600 बाय सैचुरेशन हेडवे, ये जो है, ठीक है। अब देखो नाउ दिस इज द एक्चुअल हेडवे, ऐसा होना चाहिए अगर ये कंटिन्यूअस फ्लो होता, लेकिन इनिशियली 1 2 3 4 व्हीकल का क्या है, देखो बहुत ज्यादा हेडवे है, लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, मतलब इसको टाइम क्रॉस करने में क्यूमुलेटिव डिले हो जा रहा है। एक्चुअली 2 सेकंड के अंदर अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे और टाइम ज्यादा ले रहा है, तो कितना और टाइम ज्यादा ले रहा है, दैट इज योर डिले, दैट इज योर लॉस, ओके। तो अगर ये डिले है E1 E2 E3 तो सबको सम कर देंगे टिल ये कांस्टेंट नहीं आ जाता, वी विल गेट दैट एज अ स्टार्टअप लॉस टाइम, ठीक है। इसीलिए टाइमर दिया रहता है जिससे तुम लोग प्रिपेयर्ड रहो। अगर 100 सेकेंड तुमको, अच्छा इतना बाकी है, अभी जस्ट एंटर किए हैं, 100 सेकेंड है, तुम ठीक है स्टॉप करके रख सकते हो। अब जब सिग्नल चेंज होने वाला है तो सपोज 10 सेकेंड बाकी है, यू विल स्टार्ट योर व्हीकल, तो जैसे ग्रीन सिग्नल स्टार्ट होगा यू विल एंटर, तो उससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये लॉसेस कम हो जाएगा। तो हमको लॉस नहीं चाहिए, अपना सिग्नल में लॉस नहीं चाहिए, इसीलिए टाइमर दिया जाता है, ओके। इन सिग्नल ये टाइमर का काम ही होता है कि ये तो इनिशियल लॉस जो है वो कम हो जाए, मतलब कि जैसे ग्रीन स्टार्ट हो जाएगा व्हीकल्स एंटर कर जाए, राइट। इनिशियल लॉस मतलब क्या था, ग्रीन स्टार्ट हो गया लेकिन व्हीकल एंटर ही नहीं कर रहा है, तो कुछ सेकेंड लॉस हो जा रहा है, ओके। तो वो ना हो इसलिए यहाँ पे टाइमर दिया रहता है, जिससे कि तुम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि अच्छा इतने टाइम के बाद चेंज हो जाएगा
तो जैसे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा तुम लोग एंटर कर लोगे इंटरसेक्शन को. ओके, सो दिस इज द मेन फंडा. सो ये जो लॉसेस है, इनिशियल लॉस, दिस इज कॉल्ड द हेड लॉस. ओके, अभी सॉरी, दिस इज कॉल्ड द स्टार्टअप लॉस टाइम. इन कोई कोई प्रॉब्लम में ये स्टार्टअप लॉस टाइम दे विल गिव यू. ओके, L1 का वैल्यू ये जनरली दे देता है. जैसे ये देखो, सैचुरेशन हेडवे एज्यूम कर लो, अगर नहीं दिया गया है तो 2 सेकेंड, और तुम्हारा इनिशियल लॉस टाइम भी अगर नहीं दिया रहा तो उसको भी एज्यूम कर सकते हैं हम लोग 2 सेकेंड करके. ओके, ये जो बोले थे सैचुरेशन फ्लो, देखो ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द डिस्चार्ज फ्लो वर्सेस टाइम. जैसे ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, अब गाड़ी का नंबर बढ़ रहा है, फ्लो बढ़ रहा है, मतलब क्या है, एंटर कर रहा है, राइट. नंबर ऑफ व्हीकल्स एंटरिंग ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता बढ़ता जाएगा. तो एक टाइम में आके देखो सैचुरेशन हेडवे आ रहा है, मतलब अब फ्लो भी कांस्टेंट हो जाएगा. पहले हेडवे बहुत कम ज्यादा था तो ये फ्लो भी कम था, अब हेडवे घट रहा है, फ्लो भी बढ़ रहा है. अब हेडवे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, तुम्हारा सैचुरेशन फ्लो भी कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लो भी कांस्टेंट हो जाएगा, उसको ही बोलते हैं सैचुरेशन फ्लो. अब जैसे ये टुवर्ड्स ग्रीन खत्म होने की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी और नहीं आ रहा है, गाड़ी तो मतलब जितना एंटर करना था चल रहा है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स आर गेटिंग रिड्यूस. तो नंबर ऑफ व्हीकल्स एंटरिंग द सेक्शन रिड्यूस, मतलब फ्लो भी रिड्यूस हो रहा है. तो देखो ये रिड्यूस होता होता जाएगा. सो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ द इंटरसेक्शन. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन टाइम. ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूलाज में. तो ये सब है टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, लॉस टाइम क्या है, स्टार्टअप लॉस टाइम क्या है, ये है टर्मिनोलॉजीज. अब आते हैं फॉर्मूलाज में. तो लॉस टाइम इज इक्वल्स टू, देखो हम क्या बोले थे, L1 प्लस L2. ओके, L1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, जितना नंबर ऑफ फेज होगा उतना ही स्टार्टअप लॉस टाइम मल्टीपल हो जाएगा. ठीक है, अगर 2 फेज है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. ठीक है, पर फेज तुम्हारा कितना होगा स्टार्टअप लॉस टाइम, 2 सेकेंड. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ फेज 3 फेज है तो 6 सेकेंड हो जाएगा. सो 2 इंटू n, ये है स्टार्टअप लॉस टाइम. एंड योर एंड लॉस टाइम, इसको बोल सकते हैं ऑल रेड भी बोल सकते हैं हम लोग. ओके, स्टार्टअप लॉस टाइम को हम लोग ऑल रेड, मतलब क्या है, एट द एंड वी आर नॉट यूजिंग द इंटरसेक्शन, तो उसको ही बोलते हैं ऑल रेड. ठीक है, तो इस वाले डायग्राम से ऑल रेड का फॉर्मूला क्या था, देखो हम क्या बोले थे, इंटर ग्रीन इज इक्वल्स टू एम्बर प्लस ऑल रेड. मतलब ये वाला फेज भी रेड है, ये वाला फेज भी रेड है. सो इंटर ग्रीन क्या था, ये ग्रीन जब खत्म होगा, ये ग्रीन जब दूसरा फेज का ग्रीन जब स्टार्ट होगा, तो दोनों के बीच का टाइम गैप कितना है, दैट इज इंटर ग्रीन. सो इंटर ग्रीन इज इक्वल्स टू एम्बर प्लस ऑल रेड. ओके, सो कैन वी से ऑल रेड इक्वल्स टू क्या, इंटर ग्रीन माइनस एम्बर. ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे दिया, देखो इंटर ग्रीन माइनस एम्बर और इनटू अगेन नंबर ऑफ फेज, जितना नंबर ऑफ फेज होगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है ये वाला फॉर्मूला. दिस इज L1, दिस इज L2. ओके, स्टार्टअप लॉस टाइम, स्टार्टअप एंड लॉस टाइम. एंड लॉस टाइम इज I माइनस A, स्टार्टअप लॉस टाइम इज L1. ठीक है, इसको 2 सेकेंड भी पकड़ सकते हो. और n क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन दी, जितना नंबर ऑफ फेज होगा उसका उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, तो ये फॉर्मूला है लॉस टाइम का. ठीक है, एंड दिस इज द वेबस्टर फॉर्मूला ऑफ साइकिल, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम साइकिल लेंथ. ठीक है, ये है तुम्हारा वेबस्टर मेथड का फॉर्मूला. ये सबको दिखाई दे रहा है ना, दिस फॉर्मूला. T नॉट इज इक्वल टू 1.5 L प्लस 5 बाई 1 माइनस y. देखो L क्या है, दिस इज द लॉस टाइम पर साइकिल. एक साइकिल में कितना लॉस टाइम है. ओके, तो एक साइकिल में कितना फेज है देख लो पहले, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, जितना भी लॉस टाइम होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना उस फेज से. तो L प्लस 5 बाई 1 बाई y. अब ये y क्या है, दिस y इज नथिंग बट द फ्लो. ट्रैफिक कितना आ रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ईस्ट वेस्ट से कितना ट्रैफिक आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा ऑप्टिमम साइकिल लेंथ. ऑल्सो कि कितना ग्रीन टाइम लगेगा, कितना ग्रीन टाइम देना चाहिए उस फेज को, तो उस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम बोले थे ना, अगर नॉर्थ साउथ से ज्यादा फ्लो आ रहा है तो हमको नॉर्थ साउथ में ज्यादा ग्रीन टाइम देना है. ठीक है, अगर ईस्ट वेस्ट से कम आ रहा है तो हमको ईस्ट वेस्ट में कम ग्रीन टाइम देना है. तो फ्लो यही वाला है, ये y जो है वो फ्लो को डिफाइन करता है. ओके, देखो y इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो. ठीक है, अच्छा ये वाला नोट डाउन करो एवरीवन. L इक्वल्स टू 2n प्लस r, where r is your n into I minus a. ओके, ऑल रेट पर जितना नंबर ऑफ फेज होगा इसलिए n दे दिया है. एंड दिस इज द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ फॉर वेबस्टर मेथड. আচ্ছা ডাউট আছে, চুপচাপ আছো, বুঝতে পারছি না আমি.
ए ऑफ द क्लियर, इतना दूर तक क्लियर है? ये फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1.5L + 5 1 - y। देखो अब y कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देन वी विल सी हाउ वी y आता है, ठीक है। ये y, कैपिटल Y के लिए हमको क्या चाहिए, छोटा छोटा y चाहिए, ठीक है। अगर 2 फेज है तो 2 ठो y का वैल्यू रहेगा, स्मॉल y का वैल्यू। अगर 3 फेज है 3 ठो रहेगा, 4 फेज है तो 4 ठो रहेगा, ठीक है। तो अब ये स्मॉल y क्या है, दिस इज द क्रिटिकल फ्लो रेशियो विच इज व्हाट, जो भी फ्लो आएगा, जितना भी, सपोज ए ऊपर नॉर्थ से तुम्हारा, सपोज नॉर्थ साउथ से तुम्हारा 100 व्हीकल्स पर आवर आ रहा है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा 100 व्हीकल्स पर आवर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो। अगेन सैचुरेशन फ्लो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन सैचुरेशन हेडवे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैचुरेशन फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू सैचुरेशन हेडवे? तुमको अगर सैचुरेशन हेडवे दिया रहेगा, इफ नॉट प्रोवाइडेड एज्यूम इट एज 2 सेकेंड या 2.5 सेकेंड, तो सैचुरेशन फ्लो हम लोग निकाल पाएंगे। तो बोलो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो एंड हेडवे? Q इक्वल्स टू कितना होगा, कितना H होगा? Q इक्वल्स टू, Q इज इक्वल्स टू क्या था, हम बोले थे Q एंड H आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/h, ठीक है। तो अगर इसको इक्वल टू साइन दे देंगे तो यहाँ पे ऊपर में क्या रहेगा, ये 1 के जगह पर 3600। तो Q इज इक्वल्स टू क्या है, फ्लो इज इक्वल्स टू 360 बाई हेड, ठीक है। तो सैचुरेशन फ्लो Q सफिक्स x, या इसको हम लोग S से भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू 3600 बाई, तो उसका करस्पॉन्डिंग हेडवे क्या होता है, दैट इज योर सैचुरेशन हेडवे। Okay, if not provided, HS जिसको बोलते हैं, if not provided, assume it saturation headway as your 2 second. Okay, so Y is equals to क्या था, Q small q by S, this is the flow, normal flow by saturation flow. Okay, तो क्या क्या फॉर्मूला चाहिए, देखो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला, ये वाला ले लो एक फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला ये है, थर्ड ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव ग्रीन टाइम। बार बार बोल रहे हैं कि इफेक्टिव ग्रीन टाइम हमको चाहिए। इफेक्टिव ग्रीन टाइम मतलब है कि सपोज तुम्हारा साइकिल लेंथ 120 सेकेंड का है, ठीक है, और 2 फेज सिग्नल है, ठीक है। एक फेज सिग्नल में सपोज 60 सेकेंड ग्रीन है, इफेक्टिव ग्रीन है, ठीक है, और सपोज ग्रीन यूज कर रहे हैं इफेक्टिवली, और दूसरा में तुम्हारा 40 सेकेंड इफेक्टिवली यूज कर रहा है ग्रीन, ओके, ठीक है। सो लॉस्ट टाइम क्या हो रहा है, तुम्हारा साइकिल लेंथ कितना है, साइकिल लेंथ कितना है, साइकिल लेंथ हम बोले थे 120 सेकेंड है, ठीक है। एक फेज, कोई भी एक फेज ग्रीन, उसके लिए सपोज नॉर्थ साउथ अगर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आ रहा है उसका ग्रीन है सपोज 60 सेकेंड, ठीक है, नॉर्थ साउथ के लिए, नॉर्थ साउथ फेज के लिए। और ईस्ट वेस्ट फेज के लिए तुम्हारा सपोज ग्रीन टाइम है कितना, 40 सेकेंड, ठीक है। सो व्हाट इज द लॉस्ट टाइम, मतलब कि कितना टाइम हम लोग ग्रीन यूज कर पा रहे हैं दोनों फेज मिलाकर। सपोज तनुश्री एक फेज एक डायरेक्शन से आ रहा है, श्यामश्री एक डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री वाला जो है उस एक दूसरे डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। तो तनुश्री के लिए ग्रीन टाइम है सपोज 60 सेकेंड, और श्यामश्री के लिए ग्रीन टाइम है सपोज 40 सेकेंड, ठीक है। और हम लोग डिजाइन करके साइकिल लेंथ हम लोग का आ रहा है कितना, 120 सेकेंड, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम, ये साइकिल में टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम कितना है, कि कितना टाइम गाड़ी यूज कर पा रहा है इंटरसेक्शन को। तो अनुश्री का 60, श्यामश्री का 40, तो व्हाट इज द टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम, 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। मतलब हम 60 सेकेंड इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, तनुश्री इफेक्टिवली यूज कर रहा है, श्यामश्री 40 सेकेंड इफेक्टिवली यूज कर रहा है। तो टोटल इफेक्टिव क्या है, एक साइकिल में दोनों को तो एक ही साइकिल है, राइट। मतलब एक साइकिल 120 है, उसमें 60 सेकेंड तनुश्री को दिया गया है, उसमें 40 सेकेंड श्यामश्री को दिया गया है। तो टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम इज 100 सेकेंड, बाकी का 20 सेकेंड क्या है, दैट इज लॉस्ट टाइम, ठीक है। तो हम लोग कैसे आ गए, तो उसको ये देखो,
So lost time is what? Cycle length minus total effective green time, right? Total effective green time. तो साइकिल इन 120, टोटल इफेक्टिव कितना है 60 प्लस 40 इज योर 100. सो लॉस टाइम कितना है, जितना टाइम हम लोग मतलब हम भी यूज नहीं कर, सेमेस्टर भी यूज नहीं कर पा रहा है और तनुश्री भी यूज नहीं कर पा रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज 20 सेकेंड. तो इसको हम लोग रीअरेंज करके देखो ग्रीन इफेक्टिव का फॉर्मूला ये किया है. सो साइकिल लेंथ माइनस एल इज द ग्रीन इफेक्टिव. ओके, सो यू नो वो पिछले वाले फॉर्मूला से तुमको पिछले वाले फॉर्मूला से यू विल गेट द कैलकुलेट सी नॉट. ओके, यहाँ से एल को भी पता चल जाएगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट ग्रीन इफेक्टिव. ठीक है, जैसे ये बैक कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, सपोज ग्रीन इफेक्टिव 100 सेकेंड आ रहा है. ठीक है, अब हमको तनुश्री को 60 सेकेंड देना है, श्यामश्री को 40 सेकेंड देना है. हम कैसे बोल रहे हैं इसको, अच्छा इसको ज्यादा देंगे इसको कम देंगे, किस हिसाब से बोल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो. तनुश्री जिस जगह से आ रहा है, जिस अप्रोच से आ रहा है, जिस पेस से आ रहा है, उसमें बहुत सारा ट्रैफिक है, ज्यादा ट्रैफिक फ्लो है. ठीक है, सो उसको हम लोग ज्यादा टाइम देंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे. और श्यामश्री जिस अप्रोच से आ रहा है उसमें कम तुम्हारा नंबर ऑफ फ्लोज है, ट्रैफिक है, तो उसको हम लोग 40 सेकेंड दे देंगे. ठीक है, तो ये जो एग्जैक्टली 60-40 कैसे कर रहे हैं, रेशियो के हिसाब से कि कितना इस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, उस तरफ से कितना ट्रैफिक आ रहा है, दोनों का रेशियो निकालो. तो ये वाला जो रेशियो है, ठीक है, दिस इज द रेशियो. अगर दोनों का टोटल मिलाकर ही तुम्हारा 100 है, रेस टोटल 100 है. ठीक है, 100 में से हम लोग का तनुश्री में से 60 व्हीकल्स आ रहा है, श्यामश्री कितना आ रहा है 40 व्हीकल्स आ रहा है. तो ये क्या है तुम्हारा रेशियो, वो निकालना है 60/100. ठीक है, और दूसरा वाला का होगा 40/100 और इनटू टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम जो कि 100 सेकेंड है तुम्हारा. ठीक है, तो देखो 0.6 क्या होगा, 60/100 इंटू 100 विल गिव यू 60 सेकेंड. तो उस तरह 40/100 इंटू 100 विल गिव यू 40 सेकेंड, ऐसे आ रहा है. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. सो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लो. ये वाला टर्म है फ्लो के लिए. ठीक है, कैसा फ्लो आ रहा है उसका रेशियो. सो ये क्लियर है स्टेप्स, कुछ नहीं. पहले क्या करना है हमको, एल निकालो. ठीक है, एल निकाल के फिर ये वाई निकालना, कैपिटल वाई. ठीक है, कैपिटल वाई के लिए स्मॉल वाई निकालना है. स्मॉल वाई के लिए क्या चाहिए, फ्लो चाहिए और सैचुरेशन फ्लो चाहिए. इन मेनी क्वेश्चन सैचुरेशन फ्लो विल बी प्रोवाइडेड, इन सम क्वेश्चन दे विल नॉट गिव यू, वी हैव टू जस्ट डिराइव. ओके, मतलब कि 3600 बाय हेडवे, सैचुरेशन हेडवे से. तो वाई निकाला, यहाँ पे देखो पुट कर दो, वी विल गेट सी नॉट. वी नो सी नॉट, वी नो एल, वी गेट इफेक्टिव. ओके, एंड ग्रीन इफेक्टिव से हमको ये रेशियो से उसका ग्रीन कितना है, दूसरा फेज का ग्रीन कितना है, वो आ जाएगा. So let us see this problem. ठीक है, सी इजी सा प्रॉब्लम एक देंगे हम. ठीक है, ये वाला देखो इजी सा प्रॉब्लम है. हाँ, ये वाला इजी सा है. सी द एवरेज नॉर्मल फ्लो, ये क्या है, दिस इज क्यू. ओके, देखो क्यू, द एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन क्रॉस रोड्स, ए क्रॉस रोड से ए एंड बी ड्यूरिंग डिजाइन पीरियड आर 400 and 250 पीसीयू पर आवर. मतलब फ्लो ही है, व्हीकल पर आवर या पीसीयू पर आवर. तो क्यू ए से कितना आ रहा है 400, क्यू बी से कितना आ रहा है, बी रोड से क्यू कितना आ रहा है 250 पीसीयू पर आवर. ओके, सैचुरेशन फ्लो वॉल्यूम्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. मतलब एस ए इतना है, एस बी इतना है. ओके, द ऑल रेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज 12 सेकेंड. ऑल रेड तुमको दे दिया ऑलरेडी, वी नीड नॉट टू वो जो आई माइनस ए करके जरूरत नहीं है, हमको जस्ट ऑल रेड का वही पुट कर देना 12 सेकेंड. ओके, डिजाइन टू फेज ट्रैफिक सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड. टू फेज बोल दिया है, सो एन इज योर 2, ऑल रेड आर क्या है 12 सेकेंड. ठीक है, तो यहां से कितना आएगा पहले बोलो, एल का वैल्यू कितना आएगा. इफ वी यूज दिस फॉर्मूला, एल कैपिटल एल कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो. Two into n is how much? N is 2 phase, so n is 2. R is 12 second. हाँ, L कितना आ रहा है 16 सेकंड. 16 सेकेंड. सी 16 सेकेंड आ रहा है. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे हम,
वेबस्टर मेथड का ये वाला फॉर्मूला है, इसमें हमको क्या चाहिए, कैपिटल एल निकल आया, वाई निकलना है, राइट। वाई के लिए क्या चाहिए हमको, स्मॉल वाई चाहिए। ये टू फेज है, मतलब क्या होगा, वाई वन प्लस मतलब वाई ए प्लस वाई बी निकालना है, ओके। अब वाई ए के लिए क्या चाहिए, क्यू ए मतलब क्यू ए बाई एस ए। देखो वाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई एस, तो क्यू ए बाई एस। सो वाई ए कितना आएगा, निकालो। Q is your, this is your Q 400 A के लिए, और S कितना है 1250 C 400 1250। तो इसका YA निकालो, इसका YB निकालो, कितना आ रहा है मैम 0.32 QA। सी YA is your 0.32, ठीक है, YA is 0.32, YB is 0.25, ओके। तो कैपिटल Y क्या था, कैपिटल Y क्या था, दो फेज है तो YA प्लस YB करना है। सो कैपिटल Y कितना आ रहा है, देखो 0.57, ओके। नाउ यू नो कैपिटल Y, यू नो कैपिटल L, तो सिंपली इन दिस फॉर्मूला पुट कर दो, C नॉट क्या आएगा, निकालो। कैपिटल L इज 16, कैपिटल Y इज 0.58, राइट, 0.57, कैपिटल Y इज 0.57, कैपिटल L इज 16 सेकेंड। सो C नॉट कितना आएगा, मैम 67.441। सो 67.44 सेकेंड, ठीक है। दिस इज योर टोटल साइकिल लेंथ, ओके। ये कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको ग्रीन सिग्नल देना है, राइट। हमको कितना ग्रीन सिग्नल देना है बाकी लोगों को, ए में कितना ग्रीन है, बी में कितना ग्रीन है, वो देना है। तो उसके लिए क्या बोले थे, इफेक्टिव ग्रीन निकालो पहले, ठीक है। इफेक्टिव ग्रीन हमको चाहिए, इफेक्टिव ग्रीन क्या है, सी नॉट माइनस एल। तो सी नॉट आ रहा है 64 पॉइंट समथिंग, एल आ रहा है तुम्हारा 16 सेकेंड। तो जी इफेक्टिव कितना है, टोटल जी इफेक्टिव मतलब तनुश्री और श्यामश्री दो अप्रोच के लिए टोटल ग्रीन टाइम कितना है, ये है 51.44। ठीक है। अच्छा सो टोटल अच्छा ये 51 पॉइंट जो भी आएगा, ठीक है। अब ये जो 51 क्या करना है हमको, देखो तनुश्री और श्यामश्री को टोटल कितना ग्रीन देना है, दोनों का मिलाकर 51 सेकेंड देना है, ठीक है। लेकिन अब हम किस हिसाब से देंगे, तनुश्री को कुछ देना पड़ेगा, उसमें से कुछ पोर्शन तनुश्री को देंगे, कुछ पोर्शन हम लोग श्यामश्री को देंगे। तो उसके लिए वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ओके। एज आई सेड इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो। तो इसका फ्लो कितना है, देखो इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो कितना होगा, निकालो। सो वाई ए बाई टोटल वाई 0.32 बाई 0.57 इंटू 51, यह जो भी आ रहा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा ए रोड का, बी का क्या होगा, वाई बी प्लस वाई समेशन जो भी था वाई का कैपिटल वाई इंटू तुम्हारा 50 पॉइंट जी इफेक्टिव मतलब 50 पॉइंट समथिंग। तो कितना आ रहा है, अप्रोच ए का ग्रीन इफेक्टिव कितना आ रहा है 28.87, 28.87। हाँ। और अप्रोच बी का आ रहा है देखो 22.56 सेकेंड, राइट। नाउ देखो पिछले वाले क्लास के हिसाब से देखो तुम्हारा ग्रीन भी निकल आया, ठीक है। वी नो द साइकिल लेंथ, एम्बर तुम एज्यूम कर सकते हो, और एक क्या दिया है यहाँ पे, ऑल रेड दिया है। ऑल रेड कितना बोला है 12 सेकेंड का, तो उस हिसाब से हमको ये वाला फेज डायग्राम कर सकते हो, ठीक है। मतलब ग्रीन एम्बर, फिर यहाँ से रेड स्टार्ट हो जाएगा तनुश्री का, ठीक है। तो ये जब तनुश्री का ग्रीन एम्बर था, श्यामश्री का रेड रहेगा, और ऑल रेड 12 सेकेंड तो है यहाँ, 12 सेकेंड डाल दो, डाल के ग्रीन इफेक्टिव जो भी कैलकुलेट किए उतना लेंथ यहाँ पे डाल दो, करके देखो ये टोटल शुड बी योर कितना साइकिल लेंथ है, टोटल साइकिल लेंथ शुड बी टोटल साइकिल लेंथ शुड बी 67.44, ओके। तो उसको बेस करके ये फेज डायग्राम एक बना लेना है हमको, ओके। तो वो तुम लोग कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला इजी है, नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व बिग प्रॉब्लम, ओके। ये वाला आया था 2015-16 में, ऐसा वाला आ जाएगा, ओके। ओके, दिस मच फॉर टुडे, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। ऐसा देखो पूरा दे दिया, नॉर्थ साउथ से कितना ম্যাম আমাদেরকে কোশ্চেনে মেনশন করে দেবে যে ট্রায়াল সাইকেল মেথড দেবে না 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 ওয়েবস্টার না মেথড না দেবে। না 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 না, এই যে ডায়াগ্রামটা দেখে বুঝতে হবে, ওকে, বুঝলে? হ্যাঁ ম্যাম। এই যে দেখো স্যাচুরেশন ফ্লো এইসব টার্ম যেখানে আসছে ওখানে ধরে রাখো ওয়েবস্টার। ওকে দেন
आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस न्यूमेरिकल. ओके. वेट. थैंक यू मैम. वेलकम. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you for participating. What about the others? থ্যাংক ইউ থ্যাংক ম্যাম ইউ ম্যাম। হুম. ঠিক আছে, তাহলে তোমরা আসতে পারো, তোমাদের নেক্সট ক্লাস আছে তো না? হ্যাঁ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে.